हाय કેમ છો બધા મજામાં બધાના તબિયત પાણી સારા બોલો મજા કરો છો ને બધા ઘરે સારું ચાલો આજ ચાલુ કરીએ ફિઝિક્સમાં કરંટ ઇલેક્ટ્રિસિટી માં આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં જોયું કે શું જોયું હતું કોમ્બિનેશન ઓફ રેઝિસ્ટન્સ શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ અવરોધોમાં વોલ્ટેજ ન આપેલો હોય તો વોલ્ટેજ વગર કેવી રીતે પ્રવાહ શોધવો અને બીજી સર્કિટ ઉપરથી આપણે અમુક શોર્ટ ટ્રીક જોઈ હતી। આજના વિડિયોમાં પણ આપણે અગત્યના ટોપિકની વાત કરવાની છે। એક અગત્યની મેથડ છે જે સર્કિટને સોલ્વ કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, પોટેન્શિયલ મેથડ છે। વિદ્યાર્થીઓ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરોબર। જીનીટમાં ખૂબ જ તમને કામમાં આવશે, ઇવન ગુજકેટમાં પણ કામમાં આવી શકશે, બરોબર। એટલે ખાસ ધ્યાન રાખો, પોટેન્શિયલ મેથડ વિશે સમજવાનું છે। પોટેન્શિયલ મેથડનો ઉપયોગ કરીને તમે કોમ્પ્લિકેટેડ જે સર્કિટ હશે એનું તમે સોલ્યુશન મેળવી શકો। તો ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ। ચાલો ફિઝિક્સમાં પોટેન્શિયલ મેથડ, પોટેન્શિયલ એટલે સ્થિતિમાન, પોટેન્શિયલ મેથડ ચાલો જો પોટેન્શિયલ મેથડમાં આપણે જો દાખલા તરીકે ત્રણ અવરોધ આપેલા છે R R R આ A અને આ B, આ તો સહેલું છે, શ્રેણી જોડાણ થયું। ઉભા રહ્યો, આની વેલ્યુ R, આની વેલ્યુ R, આની વેલ્યુ R। હવે આ ટર્મિનલ અહીંથી અહીંયા જોડેલો છે, સમજાય છે? આ ટર્મિનલ અહીંયા જોડેલો છે, ઓકે। ચાલો હવે તમને એવું કે A અને B વચ્ચેનો પરિણામી અવરોધ શોધો। તો ચાલો શું કરવાનું, શ્રેણી ક્યુ સમાંતર ક્યુ, થોડું અઘરું પડે, કાંઈ અઘરું નથી। જો પોટેન્શિયલ મેથડમાં શું કરવાનું, જો સમજો બધા સરખો। આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે A અને B ની વચ્ચે 20 વોલ્ટની બેટરી છે, સમજાય છે બધાને? એઝ્યુમ કરી લી। ચાલો તો આ છેડાના વોલ્ટેજ V, આ છેડાના વોલ્ટેજ 0, તો બે વચ્ચેનો સ્થિતિમાન એટલો થશે V - 0 = V। તો આ છેડો અહીંયા જોડેલો છે તો એનો મતલબ શું થશે, A છેડાનું સ્થિતિમાન V, અહીંથી અહીંયા જશો તો B છેડાનું સ્થિતિમાન 0। એટલું સમજાણું? ચાલો હવે જોવો આગળ। હવે આપણે A થી પહેલા અવરોધ તરફ જઈએ, તો A થી તમે પહેલા અવરોધ તરફ જશો તો આ છેડો અહીંયા કનેક્ટેડ છે, મતલબ આ પહેલા અવરોધનો આ જે છેડો છે ત્યાં પણ સ્થિતિમાન કેટલું હશે તો કે V હશે, સમજાય છે બધાને? ચાલો હવે નીચેથી પણ તમે જઈ શકશો, જોવો જોઈએ અહીંયા આ છેડો તો અહીંયા કનેક્ટેડ છે, સમજાય છે કે નહીં બધાને? તો હવે જો આ છેડાનું સ્થિતિમાન કેટલું થશે સમજજો સરખું। અહીંથી તમે નીચે ગયા અને જો રસ્તામાં, સમજો સરખું, શું જો રસ્તામાં એક પણ ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટ ના આવે, ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટ એટલે અવરોધ, કેપેસિટર, વધારાની બેટરી કે ઇન્ડક્ટર, એક પણ પ્રકારની વસ્તુ જો ન આવે તો સ્થિતિમાન બદલાશે નહીં। ખાસ ધ્યાન રાખજો, એક પોઈન્ટ ઉપરથી બીજા પોઈન્ટ ઉપર જાઓ, રસ્તામાં અવરોધ, ઇન્ડક્ટર, બેટરી કે કેપેસિટર એક પણ વસ્તુ ના આવે તો સ્થિતિમાન બદલાય નહીં। તો જો શું થશે, આ છેડે સ્થિતિમાન V હતું તો અહીંથી તમે આમ ગયા, આ કનેક્શન તમને આપેલું જ છે, આ પ્રશ્ન છે તમારો। તો અહીંથી તમે જો અહીંયા જાશો તો રસ્તામાં કઈ આવતું છે
ના, ઇટ મીન્સ અહીંયા પણ સ્થિતિમાન કેટલું હશે તો કે v. સમજાય છે? તો બીજા અવરોધના આ છેડાનું સ્થિતિમાન v, ત્રીજા અવરોધના આ છેડાનું સ્થિતિમાન પણ કેટલું v. ચાલો અહીંયા જોઈ કેટલું આવશે. હાલો શું થશે? બે છેડાનું સ્થિતિમાન 0, પણ આ છેડો તો અહીં કનેક્ટેડ છે તો કે હા, તો આ છેડાનું સ્થિતિમાન બોલો કેટલું થશે? 0. સમજાય છે? હા કે ના? ચાલો અહીંથી તમે ઉપર જાઓ. ચાલો ગયા આયા પહોંચી ગયા, પણ રસ્તામાં કઈ નડ્યું તો કે ના, અવરોધ નથી, બેટરી નથી, કેપેસિટર નથી, ઇન્ડક્ટર નથી. મતલબ જો અહીંયા 0 હતું તો અહીંયા પણ 0 થઈ જાય. બસ થઈ ગઈ સર્કિટ સોલ્વ. અવરોધ કોના વચ્ચે? v અને 0 વચ્ચે. આ પણ v અને 0 ની વચ્ચે, અને આ પણ v અને 0 વચ્ચે. v એટલે હકીકતે a પોઈન્ટ. સમજો તો a પોઈન્ટ જે છે એનું પોટેન્શિયલ કેટલું? v. b પોઈન્ટ આપણે a અને b વચ્ચેનો અવરોધ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. b નું પોટેન્શિયલ 0. ફાઇન્ડ the r between a and b. ચાલો તો શું થશે? પહેલો અવરોધ v અને 0 વચ્ચે એટલે કે a અને b ની વચ્ચે કહેવાય r. આવી ગયું. બીજો અવરોધ v અને 0 ની વચ્ચે. અવરોધમાં પ્લસ માઇનસ કાઈ ના હોય ને, બેટરીમાં હોય પોઝિટિવ નેગેટિવ. અવરોધમાં કાઈ ના હોય, આમ કયો કે આમ કયો, બે જ થશે. એટલે આ પણ 0 કે v કે 0 ની વચ્ચે એટલે કે a અને b ની વચ્ચે કહેવાય. ચાલો આ પણ કોની વચ્ચે કહેવાય? v અને 0 એટલે કે a અને b ની વચ્ચે કહેવાય. થઈ ગઈ સિમ્પલ સર્કિટ થઈ ગઈ. આ સર્કિટને આપણે આ રીતે કન્વર્ટ કરી નાખી. તો ચાલો a અને b ની વચ્ચે આ ત્રણેય અવરોધ કેમાં થયા? સમાંતરમાં. તો r a b, a અને b વચ્ચેનો પરિણામી ત્રણ અવરોધ છે. ત્રણેય અવરોધના મૂલ્ય સમાન અને શેમાં છે? સમાંતરમાં. તો યાદ કરો થિયરીમાં r by n, અને r by n એટલે શું થશે? r n એટલે ત્રણ જણા છે, r by 3. તો ઉપરનો તમને જે પ્રશ્ન આપ્યો છે એમાં a અને b વચ્ચેનો પરિણામી અવરોધ થશે r by 3. સમજાણો બધાને? હા કે ના? કયો જોઈ? તો ચાલો વિડિયો પોઝ કરી અને આ જરાક ઉતારી લ્યો, કોપી કરી લ્યો, અથવા તો સ્ક્રીનશોટ પણ પાડી લ્યો. ચાલો બીજો દાખલો ગણીએ એટલે બધું ખબર પડશે. ઈઝી છે, અઘરું નથી. થોડીક અઘરી સર્કિટ આપણે જોતા જઈએ. ચાલો બીજો દાખલો. સમજો બધા. પરીક્ષામાં તમને r ની બદલે કંઈ પણ વેલ્યુ આપી શકે. ઓકે, समझे से बता नहीं. चलो बच्चों, समझ में आ रहा है? तो क्या? हाँ, इधर टर्मिनल A, इधर टर्मिनल B. कितना है? नहीं अभी फेरो. This is R, this is R. Here are here are. ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है? फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच से. चलो क्या होगा इसमें? पोटेंशियल मेथड यूज करेंगे. देखो कैसे होगा. इस सिंबल का मतलब सबको पता है क्या है? इधर दो वायर कनेक्टेड नहीं है, बरोबर. ए वायर उस वायर से ऊपर से ओवरलैप हो गया है. ओके, चलो हियर ए पॉइंट पे पोटेंशियल V सपोज कर लो, बी पॉइंट पे पोटेंशियल 0, बरोबर. ओके, चलो क्या होगा अभी देखो.
इधर से इधर जाओ, बीच में कुछ नहीं आया, पोटेंशियल V। इधर से नीचे जाओ, बीच में कुछ नहीं आया, इधर भी पोटेंशियल V। ओके, गॉट इट। चलो, इधर पोटेंशियल 0, इधर से ऊपर जाओ, कुछ नहीं आया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0। इधर से नीचे जाओ, कुछ नहीं आया, इधर से पोटेंशियल 0। सो हो गया। देखो, ये दो रेजिस्टेंस है किसके बीच में? V और 0 के बीच में, और ये दोनों बाजू बाजू में है, बराबर। इसलिए इसका क्या होगा? सीरीज कनेक्शन होगा। ये दो रेजिस्टेंस है, वो भी किसके बीच में? V और 0 के बीच में। ओके, गॉट इट। पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो, ये दो रेजिस्टेंस किसके बीच में? V और 0 के बीच में। ये दो रेजिस्टेंस भी किसके बीच में? V और 0 के बीच में। तो इसको हम सिंपलीफाई ऐसे कर सकते हैं। चलो, टर्मिनल है, इधर कितना पोटेंशियल है? V। यर टर्मिनल B, इधर कितना पोटेंशियल है? 0। चलो, ड्रॉ आउट करो सर्किट। ये दो रेजिस्टेंस बिटवीन V एंड 0। ओके, RR, ये दोनों आ गए। अभी ये दोनों भी किसके बीच में? V और 0 के बीच में। V और 0 मीन्स A और B के बीच में। चलो, ये फिर भी आ गई। ये दोनों रेजिस्टेंस किसके बीच में? V और 0 के बीच में। RR, ओके, ये दो आ गई है। और ये दो रेजिस्टेंस किसके बीच में? V और 0, मतलब A और B के बीच में। अभी तो हलवा हो गया, एकदम इजी सर्किट हो गई ना। देखो, ये सीरीज में इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 2R। ये भी सीरीज में इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 2R। ये भी सीरीज में इसका रिजल्टेंट 2R। ये भी सीरीज में इसका रिजल्टेंट 2R। ओके, चलो, अब 2R 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 A और B के बीच में B सर्किट आ जाना चाहिए आप सबको। थोड़ा थोड़ा हिंदी हमारा कच्चा है, ट्राई करते हैं। Here 2R 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 A और B। तो देखो बच्चों, A और B के बीच में 2R 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 किसमें है? पैरेलल में। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? RAB is equal to R by N। चलो, 2R 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 मीन्स हियर 2R कितने हैं? 4 by 4 is equal to R by 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? R by 2। चलो, लिख लो फटाफट। समझ में आ रहा है सबको? ओके, गुड। चलो आगे, और एक सम करते हैं। इस सर्किट में से थोड़ा हम चेंज करेंगे। देखो, क्या चेंज करेंगे? इधर जो दो वायर कनेक्टेड नहीं थे, इसको हम एक दूसरे से कनेक्टेड कर देते हैं। देखो, इस तरह। ओके, तो ये जंक्शन बन गया। इधर दो वायर कनेक्टेड हो गए। इसके पहले के सम में क्या था? ओवरलैप हो गया था। इधर क्या हो गए? कनेक्टेड हो गए। तो देखो, ये कैसे होता है। Here also find out the resistance between R and B। देखो कैसे होगा। चलो, इधर भी बीच में कुछ नहीं है। इधर भी बीच में कुछ नहीं है। इधर 0, इधर भी 0, बीच में कुछ नहीं है। इधर 0, इधर भी 0, बीच में कुछ नहीं। चलो, अब क्या होगा? ये दोनों V और 0 के बीच में नहीं होगी। कैसे? देखो, इधर से आप इधर जाओगे तो बीच में इधर जंक्शन है। इट मीन्स इधर V है, इधर 0 है, इधर पोटेंशियल कुछ अलग होगा। तो हियर हम
सपोज कर लेते हैं कि हियर पोटेंशियल इज x, बरोबर। इधर का पोटेंशियल हमने सपोज कर लिया, इधर कितना पोटेंशियल है, x है। देखो बच्चों, और ये तो देखो, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में आएगा, v और x के बीच में, समझ में आ रहा है। ये किसके बीच में, v और x के बीच में। ये देखो, ये रेजिस्टेंस x और 0 के बीच में, ये रेजिस्टेंस x और 0 के बीच में, ये दोनों v और 0 के बीच में, ये दोनों v और 0 के बीच में। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। कितने, 3। एक का पोटेंशियल v, एक का x और एक का 0। एकदम इजी है। देखो, a पॉइंट, इसका पोटेंशियल v, इधर पोटेंशियल x, ये b पॉइंट, इसका पोटेंशियल 0। तो चलो ड्रॉ आउट करो फटाफट। ये दोनों रेजिस्टेंस v और 0 के बीच में, समझ में आ रहा है। यस, ओके। हियर आर, ये दोनों आ गए। अब ये दोनों v और 0 के बीच में, समझ में आ रहा है बच्चों, आर। ओके, अब ये v और x के बीच में, v मीन्स a पॉइंट, ओके। चलो, ये आ गया। अब ये x और 0 के बीच में, ये x, ये 0। चलो, ये आ गया। अब ये बचा, ये किसके बीच में, v और x, v मीन्स a और x, इसके बीच में एक और r है, समझो। ये r v और x के बीच में आ गया, ओके। और ये r x और 0 के बीच में, ये x और ये b मीन्स 0 के बीच में। हो गई सर्किट। चलो, अब आ जाएगा ये दोनों पैरेलल में, मीन्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, r इंटू r अपॉन r प्लस r, r स्क्वेयर बाई 2r मीन्स r बाई 2, इसका r बाई 2, इसका r बाई 2। देखो, ये सीरीज में 2r, ये r बाई 2, बाजू में ये r बाई 2, ये दोनों सीरीज में r बाई 2 प्लस r बाई 2 मीन्स r, ये दोनों सीरीज में मीन्स 2r। तो देखो फाइनल सर्किट कैसा होगा, ये a, इधर 2r, ये r बाई 2, ये r बाई 2, और बाजू बाजू में मीन्स r बाई 2 प्लस r बाई 2 मीन्स r, ये 2r, ओके। ये a, ये b। चलो, कितना होगा, ये तीनों पैरेलल में 1 अपॉन r a b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन r। 1 अपॉन 2r 2 टाइम्स 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन r, 2 कैंसल, 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r, 1 upon r 2 times, therefore 1 upon RAB is equal to 2 times 1 upon r, therefore इसको उल्टाओ, RAB is equal to r by 2। ओके बच्चों, चलो लिख लो, कॉपी कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखो, देख लिया, ओके। थर्ड सम,
तीसरा सम ऐसा दिया है आर 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 आर, यर ए यर बी। देखो बच्चों, बी पॉइंट है वो हम किधर भी लगा सकते हैं सारे सर्कल पे। कैसे, बाद में अभी देखते हैं। देखो पहले तो ए का पोटेंशियल कितना, बी, बी का पोटेंशियल कितना, 0। चलो अब हम इस तरह जाते हैं, तो इधर से हम इधर इस पॉइंट पे आते हैं तो क्या होगा, बीच में रेजिस्टेंस आया, इट मींस ये पॉइंट का बी है तो इधर बी नहीं होगा। इधर सपोज y है, x y z कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। ओके चलो इधर 0। चलो आगे आगे बढ़े 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 बढ़े, कुछ नहीं आया बीच में, इट मीन्स हियर 0। इधर से आगे चलो, कुछ नहीं आया बीच में, इधर भी 0। इधर से आगे चलो, कुछ नहीं आया बीच में, मीन्स इधर भी 0। इधर से आगे चलो, कुछ नहीं आया बीच में, इधर भी 0। अगर ये बी पॉइंट इधर होता तो कुछ नहीं फर्क होता, 0 0 0। ये बी पॉइंट कहीं भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके चलो अब क्या करना है, देखो फाइंड आउट द आर ए बी, ए और बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हो गया, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में, V और Y के बीच में, ये 0 और Y के बीच में, ये 0 और Y के बीच में, ये 0 और Y के बीच में। हो गया। चलो इधर पॉइंट ए Y B, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल Y, इसका पोटेंशियल 0। चलो A और Y के बीच में R। ओके ये हो गया। ये किसके बीच में है, 0 और Y के बीच में। 0 और Y के बीच में मीन्स B और Y के बीच में। चलो ये भी हो गया। ये देखो बच्चों, 0 और Y के बीच में, 0 और Y के बीच में। समझ में आ रहा है, ये किसके बीच में, 0 और Y के बीच में। हो गया। अभी तो एकदम हलवा है। ए और बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये तीनों पैरेलल में, मीन्स इसका कितना होगा, R/3। इस सर्किट पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हियर ए, हियर R, हियर R/3 और ये B। ए और B के बीच में R और R/3 सीरीज कनेक्शन में बगल बगल में है, इसलिए RAB इज इक्वल टू R प्लस R/3। इधर 3R प्लस R/3, इसका जवाब क्या आएगा, 4R/3। ओके समझ में आया सबको, चलो लिख लो। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। चलो आगे एक और देखो, सकल वाला ही प्रॉब्लम है ये। देखो इसमें R R R R, इधर ए, इधर B। फाइंड आउट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। चलो ये B पॉइंट इधर भी हम ले सकते हैं। ओके, A का पोटेंशियल V। ओके चलो B का पोटेंशियल 0, आगे बढ़ो, बीच में कुछ नहीं है, इधर 0।
आगे चलो, बीच में कुछ नहीं है, मतलब इधर 0, इधर भी 0, इधर भी 0 और ये 0 हो गया, एकदम हलवा हो गया। देखो ए पॉइंट का पोटेंशियल V, बी पॉइंट का पोटेंशियल 0। तो V और 0 के बीच में R, मतलब A और B के बीच में ये आ गया, ये V और 0 के बीच में ये भी आ गया, ये V और 0 के बीच में ये भी आ गया, और ये भी V 0 और B के बीच में। ओके, तो A और B के बीच में ये चारों पैरेलल में है। कितना होगा रिजल्टेंट इसका? सिंपली RAB, चारों की वैल्यू सेम है, R अपॉन N 4 है, इसलिए R/4। तो इसका आंसर कितना आएगा? R/4। एकदम इजी है बच्चों। आगे का देखो, प्रैक्टिस करना है इसकी भरपूर। ऐसा दिया है, तो खत्म हो गई। चलो इधर 6, 12 और 4। इधर 1, इधर 2, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। क्या निकालना है? A और बीच का, A और B के बीच का रिजल्टेंट। देखो क्या होगा, A पॉइंट पे पोटेंशियल V, चलो नीचे जाओ, आगे बढ़ो, बीच में कुछ नहीं है, मतलब इधर भी पोटेंशियल V, तो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V होगा। ऊपर जाओ, बीच में कुछ नहीं आया, मीन्स इधर भी कितना होगा? V। ओके, चलो B से स्टार्ट करो, इधर कितना? 0। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, बीच में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए इधर 0। ओके बच्चों, चलो इधर से नीचे आओ, बीच में कुछ नहीं आया, मतलब इधर भी 0 हो गया। ये 2 वाला V और 0 के बीच में V और 0, V और 0, V और 0, V और 0, एकदम इजी सर्किट है। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? चलो बच्चों, A पॉइंट, B पॉइंट, ये कितना? 2, B और 0 के बीच में, ये भी 0 के बीच में, 6 वाला, 12 वाला भी V 0 और B के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में, और ये भी V और 0 के बीच में। क्या होगा इसका रिजल्टेंट? 1/RAB इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/1। इसको सिंप्लीफाई कर लेना और उल्टा देना, इसलिए हमको क्या मिल जाएगा? RAB। चलो लिख लो फटाफट। लिख लिया? चलो लेसन देखो,
ये AEEE 2004 में आया था। इस तरह है, सर्कल है, 6 वोल्ट की पावर सप्लाई, the resistance 1.5, इधर 6, इसका 2, इधर 3 ओम। ओके, अब बेस में क्या निकल रहा है, फाइंड आउट टोटल करंट। इस टर्मिनल का पोटेंशियल 6 वोल्ट और इसका 0। ओके, समझो बच्चों, इधर से हम आगे बढ़ते हैं, बीच में कुछ नहीं, मतलब इधर 6 वोल्ट, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, बीच में कुछ नहीं, 6 वोल्ट, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, बीच में कुछ नहीं, 6 वोल्ट। ओके, चलो इधर से आगे बढ़ो, 0, हम तुम्हारे साथ है, बीच में कुछ नहीं, 0, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, 0। ओके, इधर से नीचे जाओगे तो बीच में रेजिस्टेंस आया, मीन्स इस जंक्शन पॉइंट का स्थितिमान 6 और 0 में से कुछ नहीं होगा। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज y कितना है, सपोज y। ओके, तो चलो वीडियो पॉज करो और फाइंड आउट करो। चलो 1 2 3। ओके, देखो कैसे होगा। 3 पॉइंट ए का पोटेंशियल 6, ये y और ये b, इसका पोटेंशियल 0। देखो ये रेजिस्टेंस 6 और y के बीच में 2 ओहम का, 6 और y के बीच में। ओके, चलो ये वाला 0 और y के बीच में कितना है, 8.5। ये वाला y और 6 के बीच में, y और 6 के बीच में एक और डाल लेते हैं, 6। ओके, तो ये किसके बीच में, 0 और 6, ये 0 वाला, ये 6 वाला, इसके बीच में कितना है, 3। ओके, अब टोटल करंट निकलना है तो कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर I टोटल इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा सारी सर्किट का। देखो एकदम इजी है, ये दोनों पैरेलल में, मीन्स इसका 6 इंटू 2/6 प्लस 2 मीन्स 1.5, 3/2 आंसर आएगा। देखो तो इधर 1.5, इधर 1.5 एज इट इज, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ऊपर कितना है 3, ये दोनों सीरीज में 1.5 1.5 मीन्स कितना होगा, बोलो 3, 1.5 गुजराती में बोलिए तो। और ये ए बी, तो आर इक्वल कितना होगा, दोनों पैरेलल में 3/3 अपॉन 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9/6 इज इक्वल टू 1.5 ohm. 1.5 means 3/2. Put this value in this equation. V कितना है, 6 वोल्ट अपॉन 3/2, ये ऊपर चला जाएगा, मीन्स 6 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 12/3 मीन्स 4 एम्पियर। कितना करंट होगा, 4 एम्पियर। ओके बच्चों, चलो लिख लो सब।
वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट पढ़ लो। एक और करते हैं, मजा आ रहा है? जैसी जिसकी सोच। अमुक ने मजा આવતી હશે, અમુક ને નહીં મજા આવતી હોય ભાઈ, પણ શું કરે, ભણવું તો પડે। આગલો દાખલો છે આવો કંઈક, ત્રિકોણ આપેલો છે, A B, અહીંયા R, અહીંયા R, અહીંયા R, સોરી અહીંયા A નથી, અહીંયા A છે, આ R, आ R। ओके, चलो क्या निकालना है? A और B के बीच का रिजल्टेंट निकालना है हमें। देखो A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, V। ओके, ऊपर जाओ, बीच में रेजिस्टेंस आया, मतलब इधर चेंज हो गया होगा, इधर Y। चलो नीचे आओ, बीच में कुछ नहीं, मतलब इधर Y। चलो B पॉइंट पे कितना, 0, तो ये रेजिस्टेंस Y और 0 के बीच में, ये Y और B के बीच में, ये V और 0 के बीच में, ये 0 और Y के बीच में, और ये V और Y के बीच में। हो गया, 3 पॉइंट लेने हो गए, पॉइंट A, पॉइंट Y, पॉइंट B। चलो ये वाला V और Y के बीच में R। ओके, ये हो गया, इधर कुछ नहीं है, ये वाला V और Y के बीच में, V और Y के बीच में R, ये हो गया। ये वाला Y और 0 के बीच में, ये Y और ये 0 के बीच में। ओके, चलो ये हो गया। ये V और 0 के बीच में, सॉरी ये Y और 0 के बीच में, ये वाला, ये Y और 0 के बीच में। चलो ये वाला V और 0 के बीच में, ये V और 0 के बीच में, ये R। चलो ये भी हो गया। ये Y और 0 के बीच में, Y और 0 के बीच में एक और है। ओके, चलो A और B के बीच का रिजल्टेंट पैरेलल में R इंटू R अपॉन R प्लस R/2। इधर में पैरेलल में, इधर भी R/2। तो क्या होगा देखो, A पॉइंट R/2, R/2, B पॉइंट। चलो ऊपर R, ये R/2 सीरीज में, ये R हो जाएगा। तो A और B के बीच में R और R पैरेलल में, देयरफॉर रिजल्टेंट कितना आएगा, R/2। ये आंसर है। ओके, चलो देख लो। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी पोटेंशियल मेथड। जी, नीट, गुजकेट में सब में आपको काम आएगी। इसका खास रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना बहुत ही काम में आएगा। ओके, चलो कोई भी डाउट हो तो आप हमको व्हाट्सएप करो 9924227122। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो प्लीज, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूले। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके बाय, थैंक यू। और एक बात बताना भूल गया, इसके बाद के वीडियो में और एक मेथड बाकी रहती है, ये पोटेंशियल मेथड थी।
इसके बाकी वीडियो में हम दिखाएंगे सिमेट्री मेथड। वो भी बहुत आईएमपी मेथड है, एमसीक्यू सोल्व करने के लिए शॉर्टकट है। जैसे ये शॉर्टकट थी वैसे वो भी शॉर्टकट है। तो आगे का वीडियो देखना मत भूलिएगा, प्लीज प्लीज एंड प्लीज। उसमें भी हम बहुत सीखना है, बरोबर। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।